Hello dear student, I am Varun Kumar Shah from LPM School. In this video, we are discussed about the second types of mixture, that is suspension. We are already studied about in detail the solution and types of solution, importance of solution, numerical answer solution, including volume by volume percentage and mass by mass percentage. And also we have discussed about the solubility test. On the basis of solubility test, we have covered the unsaturated solution, saturated and supersaturated solution. And after that, we are discussed about the suspension. Suspension is a type of mixture. It is a type of mixture in which the solute particles are range between solute particles are range up to the 10 to the power minus 6 meter. 10 to the power minus 6 meter is called suspension. It's called suspension. So, for example, if you take the example of this chalk powder solution, and you know that chalk did not dissolve into the water, and after mixing with water, this chalk, it remained mixed but not completely dissolved into water. So, for example, that is chalk powder plus water, sand plus water, soil, water. In medicine, paracetamol, infusion, that is oral suspension. This medicine is made up for children treatment. It is not children tablets. That's why they take this paracetamol medicine. They are oral suspension, and these are examples of suspension mixture. So we are connected to the suspension mixture directly during the treatment of different types of diseases and different types of suspension mixture. Now, taking the properties of suspension. Properties of suspension. Properties of suspension. Now, first, heterogeneous nature. Heterogeneous nature
of the suspension mixture, that is when you make when you mix the undissolved things into water, they form suspension mixture, and these are not completely uniformly mixed to the water, and that mixture are regarded as heterogeneous mixture. Now, second, that is particle size. Particles size. So particle size is greater than 10 to the power minus 6 meter. That can be seen with our naked eye. Which are visible to our naked eye. Which are visible to our naked eye. Third, so if you consider the chimney smoke, the smoke is coming out from chimney. If the smoke is black colored mixture of burned or combusted solid carbon plus air. Combusted solid carbon plus air, that is black smoke which is coming from chimney. So next, that is filter. Suspension particles suspended particles are filtrable because suspended particles are filtrables. The size means that जो फिल्टर पेपर का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 6 से छोटा होता है, तभी तो सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर साइज को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, उसको पास नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई दे आर scattered, they are separate with the help of filter paper. Filter paper. Now, third property, and come to the pore. The fourth property is that is appearance. Appearance. What is the appearance of mixture of suspension? Suppose you make the mixture of suspension. Suppose आपने chalk powder plus water का suspension mixture बनाया, तो सस्पेंशन मिक्सचर का अपीयरेंस कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा? दैट विल बी हेजी टू ओपेक. In winter season, the environment is feel from distance like hazy. During the winter season के टाइम जो environment होता है वो hazy होता है. Hazy means the thing is not clear, like transparent. So hazy to opaque. Now, fifth property, that is transparency. Transparency is
मे बी और मे नॉट, बिकॉज सपोज ये सोल्यूशन आपका बना हुआ है सस्पेंशन, और इस तरह से इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होती है? क्या लाइट के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी, लाइट के पार्टिकल्स के पाथवे को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, या पार्टिकल्स को उनके पाथवे को इरिटेट करेगा? मे बी, because when the suspended particles are not, when the suspended particles are not settled down recently, वो तुरंत सेटल डाउन ना हो तो वो लाइट के पार्टिकल्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बट जब ये सेटल डाउन कंडीशन है, when they are not settled down, मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर हाफ एन आवर्स या 1 आवर्स आप लेफ्ट करते हो अनडिस्टर्ब, तो आपका पूरा का पूरा या 30 या 20 मिनट्स के लिए आप अनडिस्टर्ब रखते हो, तो पूरा का पूरा जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सेटल डाउन when they are not settled down, अगर ये सेटल डाउन नहीं है, then they show opaque, but the whole solid particles are settled down due to the gravity, they show the transparency। ये opaque करेगा, opaque ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी नहीं रहेगी, या फिर opaque कह सकते हैं, बट वाइस वर्सा। बट ये सेटल डाउन हो जाते हैं प्रॉपर में आफ्टर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो पूरा का पूरा जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा सस्पेंडेड मिक्सचर का, वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम पे, और क्या होगा कि जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो रह नहीं गया, वो पूरा का पूरा फिर क्लियर होगा। बट क्वेश्चन ये है कि सस्पेंशन है, सस्पेंशन में हम डायरेक्टली देखेंगे तो अपीयरेंस क्या होगा? ओपेक होगा। नाउ कम टू द 6th प्रॉपर्टी। So, suspend suspension or sedimentation। Sedimentation means settle down due to the gravity. This is the 6th property of suspension mixture. So, sedimentation is a process in which the suspend dispersed particles or suspended or settle down due to gravity, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। सस्पेंशन को, अगर ये सस्पेंशन इस तरह से है, सस्पेंशन का मिक्सचर है, तो सस्पेंशन का मिक्सचर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो सॉल्यूट पार्ट होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। dispersed phase and dispersed particles and dispersed in solvent, for example water। now तो सस्पेंशन का 2 पार्ट होता है। सॉल्यूट की जगह रिस्पॉन्स फेज पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं। अगर आगे की क्लास में अगर कोलाइड पढ़ेंगे तो कोलाइड में डिस्पर्स फेज की जगह यहाँ पे पार्टिकल्स की जगह हम डिस्पर्स फेज का इस्तेमाल का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्वेंट की जगह हम डिस्पर्सन मीडियम का टर्म यूज करेंगे। नाउ इन दिस डिस्पर्स पार्टिकल्स आर सेटल्ड डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स
heavy particles are settle down rapidly or faster than lighter particles. जो हल्के होंगे, लाइटर पार्टिकल, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो अभी भी सस्पेंडेड रहेंगे, लेकिन जो हैवियर पार्टिकल्स है वो रिसेंटली few minutes, few or 10 minutes बाद वो सेटल हो जाएंगे. Now some question of the mixture portion, that is simple question, that is how can a saturated solution be converted into a unsaturated solution. Your answer is very simple. अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मीन्स उसमें जितने अमाउंट में पॉसिबिलिटी थी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है. तो सॉल्वेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सॉल्यूट जो है पूरा कर दे रहा है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड कैसे करेंगे? हम सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा देंगे, तो हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा. जैसे सपोज दैट आपके पास 100 ml वाटर है, उसमें 100 ml वाटर के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूट मिलाया हुआ है, उसको अनसैचुरेट करना है, तो आप क्या करेंगे? 100 ml वाटर की जगह 21 और ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका? फिर 20 ml जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है. इस सिचुएशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. 20 ml या 40 ml कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट ग्रेजुअली कूल. अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को ग्रेजुअली कूल्ड करेंगे. सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर आपने बनाया हुआ है और इस कंटेनर में आपको क्या है? सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है. उस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल किया आपने, पहला से कूल किया, तो कूल करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है, ये थोड़ा कम होकर यहाँ भी चला जाएगा. और जो कुछ अमाउंट में सॉल्यूट तो आपने डिजॉल्व किया ही है, तभी तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व हुआ है वाटर में, वो क्या होगा? इसमें वाटर की मॉलिक्यूल का स्पेस कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो अलग होगा. जब अलग होगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है. इस वजह से व्हेन an unsaturated solution of solute is gradually cooled, the solubility of solute in the solution decreases, and solubility तो डिक्रीज हो ही जाएगी, साथ ही साथ सैचुरेटेड एंड सॉल्यूट बिगिन क्रिस्टलाइन. तो जो सॉल्यूट होगा, जो यहाँ पे फिक्स हुआ था, वो यहाँ से हट जाएगा. हट क्यों जाएगा? क्योंकि जो स्पेस में ये रुका था वो स्पेस नहीं रहा, वो स्पेस कम हो गया, तो छोटे से स्पेस में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा. अब नहीं करने की वजह से क्या होगा? वो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स था वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे. नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर. ये मिक्सचर हमारे पास पहला मिक्सचर क्या है? सॉइल सी वाटर. थर्ड है एयर कोल. वुड एस सोडा वाटर. वुड एस सोडा वाटर. इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का मिक्सचर है. तो सॉइल किस टाइप का मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस.
सी वाटर क्या है? होमोजीनियस। एयर क्या है? होमोजीनियस। कोल हेटेरो। वुड एस हेटेरो। सोडा वाटर होमो। So in this way we can identify that soil, seawater, air, coal, wood ash and soda water. Now another topic we will discuss in the next video. Thank you.